KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is V. Samriddhi Nolakha and welcome back to our channel. Welcome to our 40-day crash course for your board examination, in which we are going to do entire revision of history and political science along with previous year questions and mock questions. So before that, in सभी lectures की PDFs and study material, study notes is available on our app, which is KP Classes Exam Prep app. And if you are an iOS user, so that is available as Class Plus app. So आपको download करना है, you have to log in, you have to put your credentials, and then if you click on free material, so in सभी lectures के study notes will be available to you free of cost. And along with that, we have also we will be also providing you all the PDFs and sample papers, which is absolutely free of cost for your board examination, so that you can practice the 3-hour paper for your boards. And apart from that, CUET and boards के regarding जो भी notification आता है, so उसके links आपको हमारे description में मिल जाएंगे. That is WhatsApp and Telegram group के links, so that daily quizzes, informative videos, current affairs, latest news से आप वाकिफ रहें. So let's get started. So the previous lectures अगर आपने नहीं देखे हैं, we have completed bricks, beads and boards, kings, farmers, kingship, car, thinkers, breed. So basically theme 1 of Indian history has been completed entirely. आज बात करें भक्ति सूफी ट्रेडिशंस को हम 2 पार्ट्स में खत्म कर देंगे, एंड वी आर एट डे 11 ऑफ आवर 40 डे क्रैश कोर्स. सो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डोंट वरी माय फ्रेंड्स, उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. भक्ति सूफी ट्रेडिशंस दैट ड्यूरिंग मिडिवल इंडिया, रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट में क्या चेंजेस आए थे, एंड व्हाई एक भक्ति और सूफी ट्रेडिशन कैसे राइज हुआ. सो आप हमारे साथ अपनी CUET के प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं. कैसे you can purchase our courses, our Udan batches, which is available for all the streams, whether you are from humanities, science and commerce. और अगर आप GT टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ जनरल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो साथ ही बैच भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए. सो एंड इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. इन जस्ट 4,999 you can purchase these Udan batches, and you can complete entire CUET preparation, which includes your domains, GT and language. So you can purchase these courses from our website and our app. So as you can see, humanities है, commerce है, even science के लिए Udan batches and Sarthi batch for general test and language. So let's get started. And this is the material. These are the books, and hard copy or soft copy will be available to you if you purchase these courses. And economics, political science, history, social science, GT, language, and all these books have more than, yes my friends, more than 1200 MCQs. So पेपर देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs प्रैक्टिस करके जाएंगे along with previous year questions. तो बात करते हैं रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस की. दिस वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द स्पेस. तो यहाँ पे क्या देखा हमें, गॉड्स एंड गॉडेसेस का राइज इन टर्म्स ऑफ कल्चर. इनकी मूर्तियां हमें देखने को काफी ज्यादा मिली थी ड्यूरिंग दिस टाइम. तो इस टाइम पे कल्स बने थे, देयर वर 2 प्रोसेसेस एट वर्क. पहला क्या था, ब्राह्मणिकल आइडियाज को हमें प्रोपोगेट करना है, एक्सपैंड करना है, which were meant to accessible to women and shudras. Earlier these ideas were limited. Women उसका participation, women participate नहीं करते हैं, even वो shudras तक भी नहीं expand होता था. So these were excluded from the Vedic learning. But अब क्या हो रहा है, इनको भी हम include कर रहे हैं, and तो inclusivity हमें देखने को मिल रही है. तो दूसरा बात करेंगे, ब्राह्मण्स ने क्या करा, एक्सेप्ट किया एंड रिवर्क करना शुरू कर दिया सर्टेन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस. जैसे जगन्नाथपुरी टेम्पल जो उड़ीसा में है, प्रिंसिपल डीटी केम टू बी आइडेंटिफाइड एज जगन्नाथ, which means the lord of the birth, a form of Vishnu. So acceptance मिला beliefs and practices को, and again हम इन beliefs और practices को मूर्ति की फॉर्म, स्कल्पचर्स की फॉर्म में देखते हैं. Such instances of integration are evident among the goddess cults as well.
अब बात करेंगे कन्फ्लिक्ट्स। अब प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट कैसे आए, क्यों आए। सो तांत्रिक प्रैक्टिसेस दीज वर वाइडस्प्रेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एक नोट आता है 4 मार्कर में तांत्रिक प्रैक्टिसेस पे, दीज वर ओपन टू बोथ मेन एंड वुमेन, दे इग्नोर कास्ट डिफरेंसेस। सो क्या है, अगेन इंक्लूसिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। Then comes Shaivism and Buddhism were influenced by these ideas. These were believed to be classified as Hindu over the next millennium. So followers of Vedic tradition, they condemned practices that were beyond the closely regulated contact with the divine through the sacrifices or the mantra. Meanwhile, the followers of tantric practice frequently ignored the authority of Vedas. जितने भी उस टाइम भक्ति सूफी मूवमेंट्स थे, उन्होंने वेदास की अथॉरिटी को कहीं ना कहीं चैलेंज किया था। And relation with the other traditions such as Buddhism or Jainism were often fraught with the tension, if not open conflict. भक्ति ट्रेडिशन की बात करें, जो भक्ति गॉड के लिए प्रैक्टिस होती थी उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी वाज सगुण एंड द अदर कैटेगरी वाज निर्गुण। सो यहाँ पे वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डिटी शिव जी, विष्णु जी एंड उनके अवतार्स एंड गॉडेसेस की वर्शिप होती थी। तो गॉड विद एट्रीब्यूट्स, और निर्गुण गॉड की कोई मूर्ति नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड है। तो इधर क्या है, स्कल्पचर्स है, एंड निर्गुण में गॉड की कोई मूर्ति नहीं है, बट एक बिलीव है कि हाँ देयर इज सम एंटिटी जो हमें प्रोटेक्ट करती है। देन अर्ली प्रोपोनेंट्स अलवर्स एंड नैनास। सो अलवर्स क्या थे, डिवोटीज ऑफ विष्णु एंड नैनास डिवोटी ऑफ शिव। तो ये सेग्रीगेशन याद करने का बहुत अच्छा मेमोरिक है। फॉर एग्जाम्पल अलवर, it has one wing and Vishnu also has wing. So अलवर एंड विष्णु दोनों में एक एक वी आ रहा है, तो अलवर और विष्णु का पैर बन गया। तो जो विष्णु के फॉलोअर्स हैं उनको हमने किस कैटेगरी में डाला, अलवर कैटेगरी में डाला। अब ऐसे याद कर सकते हैं। बचा क्या, नैनार। नैनार में कोई वी नहीं है लेकिन शिव जी में वी है, तो शिव में आ जाता है वी, लेकिन नैनार में कोई वी नहीं है। तो लेफ्ट ओवर शिव जी के पास कोई वी नहीं है, इसलिए उनके फॉलोअर्स क्या बन गए, नैनार। इस निमोनिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर एमसीक्यूज में आता है बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलवर्स किसके कौन सा फॉलो करते थे ट्रेडिशन एंड नैनास कौन सा फॉलो करते थे। जिसमें 2 वी आ गया वो आ जाते हैं अलवर्स, 2 वी विष्णु अलवर्स एंड 1 वी शिव नैनास। तो दिस इज अ ट्रिक टू रिवाइज दिस। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये मंत्र गाते थे इन तमिल इन द प्लेस ऑफ देयर गॉड्स। इनकी सिंगिंग कॉम्पोजिशन मंदिरों के रिचुअल्स का पार्ट बन गए। तो फाइनली मंदिरों में इनके जो ये कॉम्पोजिशन है हमने गाना शुरू कर दिया। ट्रैवल करते टाइम अलवर्स एंड नैनास दे आइडेंटिफाई सर्टेन श्राइन्स एट द अबोर्ड्स ऑफ देयर चोजन डीटीज व्हिच develop as the centers of pilgrimage। जैसे ट्रैवल करते करते इन्होंने कुछ सेंटर्स को रिकॉग्नाइज किया कि ये क्या गॉड्स हैं, इनके डेटी के, क्योंकि माना जाता है कि ये इनके जो डेटीज शिव जी और विष्णु यहाँ पे आए थे और इन्होंने अपनी कुछ छोड़। Now they attitudes towards the caste. So what they did, they started a movement of protest against the caste system and the dominance of Brahmins. Again, Alvars and Nainas, they were against the caste system. They rejected the authority of the caste system and especially dominance of Brahmins. They claimed their tradition to be as important as Vedas. कि Vedas को जितनी importance दे रहे हो उतना ही importance हमारा जो tradition है वो भी deserve करता है। Then नालायिरा दिव्य प्रबंधम, ये क्या है, अलवर कॉम्पोजिशन है। इसको डिस्क्राइब किया गया है एज तमिल वेदा। तो इसको, इस बुक को, इस वेदा को कंपेयर किया गया ऋग वेदा से और बोला था कि इसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी आप बाकी वेदास को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। Then the role of women devotees, 4 marker question, that what role women played at that time। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, women present थी, women used to participate in these tradition, उनको exclude नहीं किया गया, which is a good point, a positive point। तो for example अंडल, who was she? She was a woman alvar। इन्होंने काफी सारे composition गाए। Then कराइकल अमयार, ये शिव जी की डिवोटी थी। She adopted the path of extreme asceticism in order to attain her goal, and her compositions were preserved within the Nainar tradition। So इनका existence और इनकी composition patriarchal norms को challenge करती थी।
और क्यों करते हैं? क्योंकि वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस वजह से इट वाज अ चैलेंज टू पेट्रियार्की, एग्जिस्टिंग पेट्रियार्कल नॉर्म्स। अब बात करेंगे रिलेशन विद द स्टेट। ऑपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज द मेन फीचर ऑफ भक्ति हिम्स ड्यू टू द कॉम्पिटिशन। उसी टाइम पे ये बुद्धिज्म और जैनिज्म आ चुके थे, लोग काफी फॉलो कर रहे थे, तो एक कंपटीशन देखने को मिला। When चोला रूलर्स की बात करें, they supported, चोला रूलर्स ने ब्राह्मणिकल आइडियाज भी सपोर्ट करा, भक्ति ट्रेडिशन को भी सपोर्ट करा, मेकिंग द लैंड ग्रांट्स एंड कंस्ट्रक्शन टेम्पल्स फॉर द विष्णु एंड शिव। जैसे कौन कौन से टेम्पल है जो चोला रूलर्स ने पेट्रोनाइज किए थे? चिदम्बरम में शिव जी टेम्पल, थांजावुर टेम्पल, गंगाईकोंडा, चोलापुरम, ये चोला रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट करा टू शो देयर पेट्रोनेज दैट दे वर सपोर्टिंग रिलीजन। तो यहाँ पे हमें स्टोन और मेटल स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं, एंड दे वर बिल्ट टू रिक्रिएट द विजन ऑफ भक्ति सेंट्स बाय चोला रूलर्स टू विन देयर सपोर्ट। So initiative of singing Tamil Shiva hymns in the temples and organizing them into a text, क्या बोला गया था उसको? तेवरम बोला गया। It was also introduced. Now एक और कर्नाटक में एक न्यू ट्रेडिशन देखने को मिला जिसे हम कहते हैं वीर शैव ट्रेडिशन। It's a PYQ has been asked as a 4 marker. Straight away question आता है, वीर शैवा ट्रेडिशन ऑफ कर्नाटका, what do you mean by it? कैसे पेट्रोनाइज हुआ, कैसे स्प्रेड हुआ, what was it? तो ये एक ब्राह्मण ने स्टार्ट करी थी जिसका नाम था बासवना। 12th सेंचुरी में आए, एंड इनके फॉलोअर्स, इस ट्रेडिशन के फॉलोअर्स को क्या टर्म दिया गया? वीर शैव टर्म दिया गया। ठीक है, द हीरोज ऑफ शिव and Lingyakats, these are the wearers of ling. So Lingyakats क्या कहते थे? They bury their head instead of cremation. जलाने से बेटर बॉडी को क्या करो? बरी करो। As they believe it will be united with Shiv and not return to this world. अगर आपने क्रिमेट कर दिया, जला दिया, तो this body will not be able to come. They also challenge the idea of caste and rebirth, encourage post-puberty marriage and remarriage of widows. Vachans composed in Kannada by the followers throws the light on Veer Shaiv traditions. Then religious movement in North India. What was happening in North India? ये देखते हैं North India में क्या हो रहा था. During this period, several Rajput states emerged, जहाँ पे ब्राह्मण्स ने occupy कर दिए important position without any significant challenge to authority. However, other religious leaders who challenged orthodox Brahmanical framework started gaining ground. कौन थे ये? नाथ, जोगीज and सिद्धार्थ. So they came from artisanal groups जो आर्ट को पेट्रोनाइज करते थे, आर्ट को एक्सपैंड करते थे, उनका ही ग्रुप ग्रो हो रहा था, इमर्ज हो रहा था. These religious leaders questioned the authority of Vedas again, and the language is spoken by the local people. New development during this stage was establishment of Delhi Sultanate, which led to marked changes in cultural and religious reading. This was all about this lecture. सूफी ट्रेडिशन में क्या हुआ, इस्लाम कैसे आया, उन्होंने कैसे डिवोशन किया, we are going to discuss in the next lecture, which is lecture 12. So thank you guys, thank you for watching this video. Again, I'm inviting you to purchase our Quran batches from our store and our website. Along with that, if you want to have daily updates, daily quizzes, informative videos regarding CUET and board examination, you can join us on WhatsApp and Telegram groups का पार्ट बन सकते हैं, so that आप जितनी भी latest news है उससे वाकिफ रहें. So I'll see you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP Classes. Dedicated to excellence.